Good afternoon, students and teachers. ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସୁଶ୍ରୀ ସଂଗୀତା ପଟେଲ ଲମ୍ବୋଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କୁଣ୍ଡୁକେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୂଗୋଳର କୋର୍ସ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। খুব শীঘ্র ফেব্রুয়ারি 20 তোমার পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে তো আমি আমার সেই প্রশ্ন উত্তর উপরে আমি এবে ফোকস করি প্রশ্ন উত্তর গুড়িক আলোচনা করা। আজ আমি আলোচনা করা সম্বল সম্বলর ও তার বিকাশ, ভূ সম্বল কণ ও মূর্তিকা সম্বল, এই তিনোটি পাঠক আজ আমি আমার প্রশ্ন উত্তর মাধ্যমে আলোচনা করা। সম্বল কোণ আমি জানিছু, সম্বল কিপরি মানে আমার ব্যবহার যে আমার নীতিদিন জীবনের কামরে আসুচি, আমার অর্থনৈতিক সম্বল কিপরি প্রভাবিত করুচি, তো এইসব বিষয়ে আমি যেহেতু পড়ি সারিছু আমি এবে প্রশ্ন উত্তর মাধ্যমে কেতে গুড়ি আমার পরীক্ষার আসুচি লং কোশ্চেন, আমার সংক্ষেপে উত্তর দিও, কারণ দর্শাও, সংক্ষিপ্ত টিপ্পणी লেখ, তো এইসব মাধ্যমে আমি তাকে আলোচনা করা। তো চলো পিলা মানে আমি সমস্ত স্মার্ট বোর্ড কু প্রথমে আমার যে রয়েছে দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন উত্তর যা কি আমার 4 মার্কর রয়েছে, তো আমি ধ্যান দেবা আমি এই প্রশ্ন গুড়িক করা আমি 4 মার্ক হিসাবে আমি সব মানে পয়েন্ট হিসাবে করলে কোণ হব না, যে আমার লেখাটি সুন্দর লেখা যাব তা সাথে সাথে আমার যে এক্সামিনার থাকবে যে খাতা শুধুবে তাঁকু ঠিক লাগবে পড়া। তো আমি সবুলে ধ্যান দেবা আমি যেতে প্রশ্ন উত্তর করু পয়েন্ট অনুসারে করা। তো আমার প্রথম প্রশ্ন হল সম্বল কাহাকে কুহযায়, এর ব্যবহার ক্ষেত্রে মনুষ্যর ভূমিকা বর্ণনা কর। আমি যেহেতু জানিছু মনুষ্য হচ্ছে সম্বলর স্রষ্টাকর্তা, তো আমি সেই মনুষ্য উপরে ফোকস করে প্রায় কোশ্চেন আসছে আমার লং কোশ্চেন এই পাঠর। তো আমার প্রথম পয়েন্ট আমি লিখবা মানবীয় কার্যকলাপর ক্রিয়াত্মক, যাহা মানব করে যার ক্রিয়াত্মক বস্তুকে হি আমি সম্বল বলি কই থাও। মানবীয় কার্যকলাপর ক্রিয়াত্মক বস্তুকে সম্বল কুহযায়। আমি সম্বলর বেশি মানে পরিভাষা দেবানি, তার তাকে সংক্ষিপ্ত আমি ব্যাখ্যা করে লিখিদেবা কি কার্যকলাপর ক্রিয়াত্মক বস্তুকে সম্বল কুহযায়। সম্বল ব্যবহার ক্ষেত্রে মনুষ্যর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইথিবারু মনুষ্যକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟାକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଉପଭୋଗ ବି ମନୁଷ୍ୟ କରେ ଓ କ୍ଷୟ ବି ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବ ଆମେ କିପରି ଭାଗ କରିଛୁ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଆମର ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସେଠି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କହିଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା IUCN ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ଭାବରେ ଭାରତ ଏହାର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା IUCN, ଯାହାକି ଆମର ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଅଟେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଭାରତ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ IUCN ର ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜ ଆମର ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଅପୂରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଣି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ
एई मापदंड करिथौ। तो एही परि आमे विभिन्न प्रकार लोकन को सचेतन करा जाउची किपरि हम प्राकृतिक संबलर संरक्षण करि पारिबा। प्रश्नला भारत रे थिबा अरण्य भूमि संपर्क रे आलोचना। हमें भू संबल नेछु भू संबल रे हम जो अछि तो अरण्य भूमि संपर्क रे आलोचना कर हम भू संबल पाठ रे हम एटा नै परिबा। तो हम एथि रे हमर अरण्य नीति अनुसार पारिभाषिक संतुलन पाई देशर समुदाय आयतन 33 भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित हेबा आवश्यक। किंतु आम देश भारत रे मात्र 24.39 भाग अंचल अरण्य रहिछि। माने हमर परिवेश संतुलन पाई हमर आहुरी अरण्य आवश्यक पड़ुछि। द्वितीय पॉइंट लिखबा को अरण्य को जगह बेसी मात्रा अरण्य देखा जाए, को जगह कम मात्रा अरण्य देखा जाए, कोठारे बहुत माने अल्प समय अल्प अरण्य देखा जाए। तो से पे हम भाग कर दबा हमर लाक्षाद्वीप, मिजोराम, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, हमर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड ए सब सर्वाधिक अरण्य देखा जाए। तो एक मार्क के प्रश्न एमती क्वेश्चन भी आसी जाय पिला माने आम देशर सर्वाधिक अरण्य के स्थान देखा जाए। तो एबिटु कौन सी थिले भी हमें ताकू सर्वाधिक बोली कि हमें मार्क करि परिबा। प्राय हमर अरुणाचल प्रदेश रो प्रश्न के लेकी बेसी आसी जाय तो हमें ताकू लिखि परिबा। सेही परि छत्तीसगढ़, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, केरल एवं दादर और नागर हवेली रे समुदाय क्षेत्रफल 40 रु 75 भाग अरण्य रही अछि। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखियो हमें 20 रु 40 भाग अरण्य केउ केउ अंचल रे अछि ना हमर आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश रे हमर 20 रु 40 भाग अरण्य रही। जे भाग करा अछि अरण्य संबल हम जे पढिबा को जिबा हम एठी मध्ये सेसी पॉइंट गुडा को नै परिबा। तापरे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंग, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य रे कृषि कार्य पाई अरण्य प्रायतः संपूर्ण क्षय होई जायछि। माने अरण्य प्राय तेरे कृषि कार्य बेसी मात्रा रे करा जाउथार अरण्य बेसी परिमाण रे नै तार अरण्य भूमि रो परिमाण ह्रास घटुछि से अंचल रे। एही परि हम ताको माने पॉइंट कर हम लिखि परिबा। नेक्स्ट हमरो मृत्तिका संरक्षण पाई सरकारी स्तर रे निया जाउथवा व्ययबहुल बृहत पदक्षेप गुडी को उल्लेख कर किंबा मृत्तिका संरक्षण नियंत्रण पाई सरकार केउ केउ पदक्षेप नेछंती आलोचना कर। एपरि दुईटी प्रश्न आसी पारे एपरि किंबा मृत्तिका संरक्षण नियंत्रण पाई सरकार केउ केउ पदक्षेप ग्रहण करजंती। जहा प्रश्न पड़ले हम लोग एपरि एही पॉइंट गुडी को हमरो रहिबो। विभिन्न सरकारी और बेसरकारी संस्था साहाय्य केतेक बृहत योजना माध्यम रे दुर्गम भूमि और नदी क्षयित भूमि को कृषि शिल्पोपयोगी करा जाउछि इत्यादि निमित्त व्यवहार करा जाउछि। तापरे हमरला पुनः वनीकरण माध्यम रे नूतन अरण्य सृष्टि करा जाउछि। अत्यधिक पशुचारण को रोकिबा पई आईन प्रणयन करा जाइछि। हम दुईटी जोगुर हम मृत्तिका क्षय को रोकी परिबा। तापरे बुंदा जलसेचन साहाय्य रे मृत्तिका क्षय रोका जाय परिबो। जलर प्रभाव न आसी मृत्तिका क्षय को हमें रोकी दे परिबा। नदी संचारे बंध और जल भंडार सृष्टि करी बन्या नियंत्रण मध्य कले आमर मृत्तिका क्षय संरक्षण होई पारिबो। नदी संयोग योजना द्वारा बन्या नियंत्रण करबा सहित मृत्तिका क्षय मध्य रोकिबा होछि आमर सरकार एही सब पदक्षेप लेछंती। से बेसी मात्रा आमर बुंदा जलसेचन उपर बेसी आमर गुरुत्व दिया जाय थाए। तो सेही परि आमर ग्रुप पॉइंट गुडी हम लिखि पाइबा। नेक्स्ट प्रश्न आमर होछि भारत रे देखा जाउथवा अरण्य मृत्तिका संबंध रे आलोचना कर। या अरण्य मृत्तिका, मरुस्थली मृत्तिका, लोहित मृत्तिका किछि भी प्रश्न आसी पारे। कृष्ण मृत्तिका तमे प्राय हमर जो आसुची अरण्य मृत्तिका नेक्स्ट हमर गत वर्ष छाडी त नेक्स्ट वर्ष आसीतले ए प्रश्नटा सेते मैं प्रश्न ले जाइछि। हाडर पावर 3000 मीटर रु 3500 मीटर मध्ये जे सरळ वर्ग अरण्य देखा जाए सेटारी हमर मृत्तिका देखा जाय थाए। तो एही मृत्तिका हमर बेसी मात्रा जैवांश न थिबारु यार रंग प्राय कला देखा जाए। मात्र निम्न भागर मृत्तिका यार पाउसिया और धूसर किंबा पाउसिया लाल होई थाए। एही सब मूर्ति हमर वृक्ष पादसरे पत्र गुडी को झड़ी एकत्र गदा होई जो अपघटन होई था से प्रक्रिया माध्यम रे एही मृत्तिका गठन होई थाए। एथि जैव सार जैवक्षाजान अधिक परिमाण रे थाए। पोटास फॉस्फोरस चून अंश कम मिबा जो सार प्रयोग करी कृषि कार्य करा जाई थाए। चाहा, कॉफी आदि रोपण कृषि, मसला, फल, बाली, मका इत्यादि सही मृत्तिकार बेसी भल मात्रा रे होई थाए। आमे जानिचो चाहा, कॉफी हमरो पहाड़िया अंचल होई थाए। जेहेतु एही मृत्तिका हिमालय पर्वत देखा जाउथारु आमे एही पॉइंट को लिखि पारिबा। एही मृत्तिका आसाम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, कर्नाटक
और केरल तमिलनाडु यही सब अंचल में बेसी मात्रा देखा जाए। पूर्वघाट पर्वतमाला और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई अंचल में देखा जाए। और से अंचल में यही सब चाष कर चाह कॉफी रोपण कृषि मसला आदि चाष करा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मरुस्थली मूर्तिकार गठन और वितरण संबंध में आलोचना कर। ये आम दुईटी गोटे अरण्य मूर्तिका नेले आ गोटे मरुस्थली मूर्तिका नेले आमर अन्य प्रश्न भी आसपे लोहित मूर्तिका कृष्ण मूर्ति आमर विभिन्न प्रकार क्षारीय मूर्तिका तो आम इसी अनुसार पॉइंट करी आम लिखि पारिबा। आमर प्राय यही अंचल मूर्तिका राजस्थान थर मरुभूमि जेहेतु मरुस्थली मूर्तिका कही कौटी देखा जाए आम से मरु अंचल गुड़ी को नहीं पारिबा। थर मरुभूमि गुजरात सौराष्ट्र और कच्छरे हरियाणा और पंजाब राज्यर मरुस्थली जगह केतेक जगह मरुस्थली मूर्तिका देखा देता है। ए प्रकार मूर्तिकार अल्प परिमाण बाली थाए लवण और फस्फरस एवं कम परिमाण में जैवांश जबरक्षाजान और कैल्शियम कार्बोनेट थिबारु यह अनुर्वर अटे। यही मूर्तिकार जलधारण शक्ति खूब कम अटे जेहेतु यह बालिया मूर्ति मरुस्थली मूर्तिका जलधारण शक्ति कम थाए। गोटे गोटे पॉइंट कर लिखि पारिबा। जल जोगाण द्वारा यही मूर्तिकार चाष करा जायते। जदि आम जल जोगाण करिपारिबा जलसेचन दे पारिबा तेबे जेकी मूर्तिकार आम चाष करि पारिबा। भारत समुदाय आयतन 15% अंचल में यही अरण्य देखा जाए। आम जिते अरण्य रही 24.3 रही से 15% आम मरुस्थली मूर्तिका यही अंचल में देखा जाता है। राजस्थान गंगानगर जिलार मरु अंचल में इंदिरा गांधी केनाल द्वारा जलसेचन करा जाय यही मूर्तिकार प्रचुर खाद्यशस्य और कपा उत्पादन करा जाउछि। हम राजस्थान जो रही इंदिरा गांधी केनाल जो द्वारा कि यार व्यवहार यहाँ जो आमर यही मरु मूर्तिकार विभिन्न प्रकार प्रचुर खाद्य शस्य चाष कर खाद्य शस्य उत्पादन करा कपा उत्पादन करा जद्वारा कि आमर यह चाष उपयोगी हो पारि। पॉइंट आम लिखिपर। नेक्स्ट आम आसला पार्थक्य दर्शाओ कारण दर्शाओ आम संक्षेप उत्तर दिए सब प्राय 2 मार्कर प्रश्न आसी थाए तो आम से पॉइंट हिसाब से लिखा। आम प्रथम है प्राकृतिक संबल और सांस्कृतिक संबल। तो संबल पाठ निहाई प्राय प्रश्न आसे यहाँ प्राकृतिक संबल क्या कहुए सांस्कृतिक संबल क्या कहुए। प्रकृति जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में उपकृत होता है सेगुड़ी को प्राकृतिक संबल कहुए। जदि मन न पड़ुची लंबा जो आम लिखार प्रकृति ठार आम जो संबल पाई था प्राकृतिक संबल कहुए आम पॉइंट कर। नेक्स्ट सांस्कृतिक संबल है प्राकृतिक परिवेश मिलुवा विभिन्न प्राकृतिक संबल गुड़ी को मनुष्य निजर ज्ञान कौशल माध्यम कि विभिन्न उपाय व्यवहार उपयोगी करी जो संबल सृष्टि करे ताहाकू सांस्कृतिक संबल कहुए। प्रकृति बाहर प्रकृत परिवेश मिलुवा जिनिस को मनुष्य तार ज्ञान कौशल बल तार उन्नत टेक्नोलोजी माध्यम जो करें जीपरी भाव में व्यवहार उपयोगी करें सांस्कृतिक संबल बोली कही था। मूर्तिका भूमि अरण्य प्राणी और उद्भिद जगत हूँ आम प्राकृतिक संबल अंतर्गत होता बेले आमर जो शिल्पानुष्ठान अच्छी वैषयिक अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान कलकारखाना परिवहन जोगाजोग इत्यादि जो रही संबल यह हूँ आम सांस्कृतिक संबल उदाहरण अटे। नवीकरण योग्य संबल और नवीकरण अयोग्य संबल यहपरि आमर संबल प्रकार भर अन्य किसी पूरणीय संबल अपूरणीय संबल अच्छी स्थानीय संबल सर्वबृहत संबल से नवीकरण योग्य संबल और नवीकरण अयोग्य संबल नियाई। जो संबल मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़ी को पुनः भरण करा जाई पारि थाए सेगुड़ी को नवीकरण योग्य संबल बोली कहा जाए। जो एपटे आम लिखा जो संबल मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्य कारण द्वारा ह्रास पाइला बा नष्ट हो गले आउ सेगुड़ी को पुनः भरण संभव नुहे तेणु हो न था सेगुड़ी को आम नवीकरण अयोग्य संबल बोली कही था। ठीक यार अपोजिट पार्थक्य दर्शाओ लिखा। जल मूर्तिका वायु इत्यादि है आम नवीकरण योग्य संबल कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक बाष्प एगुड़ी आम नवीकरण अयोग्य संबल। जिते आम
संबल संबल मध्य पार्थक्य दर्शाइबा मन प्रथम आम लिखिदेवा प्रश्न संबलर संज्ञा मान क्या कह जाए आ द्वितीय उदाहरण एपरि दुईटी पॉइंट कले आमर ठीक रहिबो। जातीय संबल और आंतर्जातीय संबल देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य समस्त प्राकृतिक संबल और सांस्कृतिक संबल और मानव संबल इत्यादि को जातीय संबल कह जाए जहाँकि आम भौगोलिक सीमारेखा मध्य रही। आंतर्जातिक जो संबल आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है ताहाको आंतर्जातीय संबल बोली कह जाए। परिका आम जातीय संबल आसला रास्ताघाट केनाल रेलपथ खनिज पदार्थ जल अरण्य और वन्यप्राणी इत्यादि आमर जातीय संबलर अंतर्गत होइथिबा बेले समुद्र उपकूल अन्य अर्थनैतिक अंचल ठारू 200 नॉटिकल माइल परवर्ती अंचल थिबा सामुद्रिक संबल यार अंतर्गत अटे भाग कर लिखिपर। उसर मूर्तिका और बरी मूर्तिका कौन मूर्तिका संबल पाठर निआई आम ये लिख उसर मूर्तिका कौन उत्तर प्रदेश और पंजाब रे देखा जाउथबा लुणा और क्षारीय मूर्तिका को उसर मूर्तिका बोली कहा जाइथाय। ठीक सेपरी केरल राज्यर पश्चिमांशरे कोट्टायाम और आलपुजा जिल्ला रे देखा जाउथबा पीठ जलाभूमि मूर्तिका को बरी कहा जाए। आमर लुण आम लिखा लुण और क्षारीय मूर्तिका को आम उसर बोली कही था और पीठ और ज्वालाभूमि मूर्तिका को आम बरी मूर्तिका बोली कही था। आम लिखिपर तार आम कौ जगह या उत्तर प्रदेश और पंजाब देखा जाता बोले केरल राज्यर पश्चिमांचल केतेक अंचल देखा देइथाय। यार जलधारण क्षमता बहुत कम होता है और एथिरे कैल्शियम और जबरख्याजान अभाव परिलक्षित हुए। एथिरे कौन होची अधिक ओजन विशिष्ट होता है अम्लीय लुणिया और जैवांश युक्त होता है आमर बरी मूर्तिका यही भाव आम पॉइंट कर लिखा। तापर आसला संक्षेप उत्तर लेख यह आम 2 मार्क प्रश्न आसी प्राय आम या लिखि पार 2 मार्क 3 मार्क बेले बेले आम संक्षिप्त टिप्पणी नदी यह 3 मार्क कर आसी था आम से 3टी पॉइंट लिखिदे आम 3टी पॉइंट जो अभ्यास कर जाइए पढ़ी जिपरी मार्क आसपरी पॉइंट दे लिखि पार। विभिन्न जनसंख्यार अहेतुक वृद्धि फल भारत में क्यों सब समस्या सृष्टि होती आम जानू जनसंख्या वृद्धि जो आमर आम नाना समस्यार सम्मुखीन होता तो से मध्य आमर भारत जो जो आम संबल वृद्धि अहेतुक जो आम भारत में जो संबल परिमाण ह्रास घटुची आम हाथ में लिखि पार। विभिन्न संबल परिमाण में अहेतुक ह्रास घटी जनसंख्या वृद्धि जो 2 संबल आहरण में विषमता जो मुष्टिमय लोकों पाखरे संबल जमा हो रहा फल समाज में धनी और दरिद्र 2टी श्रेणी सृष्टि होती। संबल गुड़ी को निर्विकार भाव उत्तोलन जो विभिन्न पारिस्थितिक समस्या जपरी भूतकीकरण ओजन स्तर ह्रास परिवेश प्रदूषण और भूक्षय इत्यादि सृष्टि होमर जनसंख्यार अहेतुक वृद्धि फल यही सब समस्या देखा जाउछि। नेक्स्ट मूर्तिका गठन परिवेश कारक गुड़िक लेख मूर्तिका गठन कला जो काम 6टी जो कारक रही से कारक गुड़िक आम संक्षिप्त टिप्पणी एपरी लिखिपर यह प्राय आम परीक्षा लंग क्वेश्चन आसी था लंग क्वेश्चन आसला आम प्रत्येक कारक को आम किसी आलोचना करवा। प्रथम कारक है मोर पृष्ठ संचरणा द्वितीय है पृष्ठ उच्च ढालू जलवायु प्राकृतिक उद्भिद आम जैवांश आउ तार समता समता विहीन किपरि आमर भूमि रही से आम आलोचना करेगुड़ी आम 6टी कारक आमर मूर्तिका गठन विशेष भाव में प्रभावित करें। नेक्स्ट है आमर स्थानांतरित कृषि कौन यह क्यों क्यों अंचल परिलक्षित होता है प्राय आम स्थानांतरित कृषि पड़ी थाए आ कृषि जो आम तुम आग को जो कृषि पाठ अच्छे कृषि पाठ में स्थानांतरित कृषि कौन रोपण कृषि कौन तार पार्थक्य दशा पड़ी थाए। तो स्थानांतरित कृषि कौन ना आमर आम समस्त जानूँ आमर कौन सी अंचल पार्वत्य अंचल जंगल को काटी पोड़ी कर चाष को आम पोड़ी चाष बा स्थानांतरित कृषि कही था। केतेक पार्वत्य अंचल जंगल को काटी पोड़ी कर कृषि को पोड़ू चाष बा स्थानांतरित कृषि कह जाए। पोड़ू चाष आम प्राय ओडिशा आम पोड़ू चाष बोली कही था। ओडिशा आसाम छत्तीसगढ़ आदि राज्य में पार्वत्य अंचल स्थानांतरित कृषि करा जाय थाए। ओडिशा आसाम छत्तीसगढ़ यही सब अंचल यही चाष कृषि कराई थाए।
ओडिशा आम यहाँ पोड़ू चाष कहू और आसाम यहाँ आम झुम चाष बोली कही था। विभिन्न स्थान अनुसार यार नामकरण करा चारण और गोचर भूमि भारत समुदाय क्षेत्रफल शतकड़ा प्राय 3.3 भाग भूमि आमर चारण और गोचर भूमि भाव में व्यवहार करा ग्राम मानकर पूर्वर अनेक गोचर भूमि क्रमे गृह विभिन्न शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य अनुष्ठान स्थापन निमित्त व्यवहार हो सारी। हिमालय पर्वतांचल जम्मू और काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड प्रभृति राज्य में उत्तर पूर्व राज्यगुड़िकर पर्वतांचल यही पश्चिम घाट पद्मांचल केतेक परिमाण में चारण भूमि देखा जाए। कारण यही अंचल देखा जाए कारण यही अंचल मुख्य जीविका ही पशुपालन अटे। तेणु से चारण भूमि आम देखा पाई था। यही अंचल सर्वाधिक चारण भूमि आम हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक चारण भूमि आम देखा पाई था। अनेक चारण भूमि बोले आम कौटी केते मात्रा थाए आमर सर्वाधिक आमर हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक चारण भूमि आम देखा पाई था। आमर एबे चारण भूमि बा गोचर भूमि को ह्रास पाउछि कहीं आम जनसंख्या वृद्धि जो आम कौन कर गृह विभिन्न अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान स्थापन करने द्वारा ताहा ह्रास पाउछि। नेक्स्ट हमला जल प्रवाह द्वारा मूर्तिका किपरि क्षयित होउछि। जल प्रवाह द्वारा तीन प्रकार रे मूर्तिका क्षय होइଥାଏ। प्रथम रे हला हमर पृष्ठ मूर्तिका क्षय साधारण भाव प्रत्येक स्थान रे होइଥାଏ। आंगुली आकृतिर धाराक्षय पार्वत्य भूमि होता है। तीख पहाड़ और आर्द्रभूमि रे गर्भक्षय होता है। गर्भक्षय द्वारा आमर दुर्गम भूमि बा नदी उच्चाबच भूमि सृष्टि होता है। यहीपरि भाव में आमर ए तीनोटी माध्यम आमर जल प्रवाह होता द्वारा आमर मूर्तिका क्षय होता है। नेक्स्ट मिलवा मनुष्य को मानव संबल कहा जाए कहीं। मनुष्य संबलर स्रष्टा उपभोक्ता और क्षयकारी कारक भाव विवेचित प्रथम भाव पढ़ी सारी लंघुषे तो जहाँ प्रथम पॉइंट द्वितीय आम लिखा मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम प्राकृतिक संबल को रूपांतर कर व्यवहार उपयोगी मनुष्य ही कर। नेक्स्ट आम अर्थनैतिक भूगोल में मनुष्य को एक मुख्य कर्ता भाव ग्रहण करा तेणु मनुष्य को मानव संबल बोली कहुए। जेहेतु मनुष्य गोटे माने निजे सृष्टि करुच्ची जिनस को से माने मनुष्य को भी आम मानव संबल बोली कही। नेक्स्ट आमर कारण दर्शाओ यह परीक्षा कारण दर्शाई आसी है। आसला आम लिखिपर लोएस्ट एक अनुर्वर मूर्तिका कहीं प्रश्न आसला तुम कहीं प्रश्न आसवा कारण दर्शाओ थी आम लिखा राजस्थान उत्तर पश्चिमांचल अवस्थित थर मरुभूमि आड़क पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश आड़क पवन द्वारा परिवाहित सरुबाली बा धूलिकणा मिश्रित माटी अटे लोएस्ट माटी कोई रहे जहाँकि आम लोएस्ट नाम परिचित करूँ। तो यही माटी आमर जेतु आम धूलिकणा बा बाली रे सृष्टि होता है तेणु आम एथरे कौन देखा पाइबा ना बाली धूलिकणा आदि अजैव पदार्थ द्वारा यही मूर्तिका सृष्टि होता अनुर्वर अटे। प्रथम पढ़ी मरुस्थली मूर्तिकार पढ़ला कि आम बाली द्वारा माटी जो होती अनुर्वर अटे। तो एथि लोएस्ट मूर्तिका जेहेतु माने परिवाहित बाली द्वारा गठित होती बाली और धूलिकणा द्वारा मिश्रित ही माटी से अनुर्वर अटे। मनुष्य को संबल सृष्टिकर्ता कहा जाए कहीं अव्यवहित अवस्था पड़ता पदार्थ को मनुष्य ही व्यवहार योग्य करे। प्रथम पॉइंट लिखा। दुई नंबर आम लिखा मनुष्य और ताहार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया जो कार्य संबल सृष्टि करे तेणु मनुष्य को संबल सृष्टिकर्ता कहा जाए। संबल द्वारा मनुष्यर जीवनशैली उन्नत होता है किपरि आम जानूँ जो देशर संबल एत उन्नत से देशर आर्थिक अवस्था उन्नत बोली आम पढ़िले। तेणु मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेश उपर सदासर्वदा निर्भर कर जीवन धारण करें। प्रथम पॉइंट लिखा। द्वितीय लिखा परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में विनियोग कर से तार आवश्यकता पूरण करे। तेणु संबल द्वारा मनुष्यर जीवनशैली मान जना पड़ी था। भारतर समतल अंचल जनबसती देखा जाए। समस्त आज समतल अंचल कृषि कार्य भल हुए आमर बही भाषा न लिखि निज भाषा लिखि पारिबा। भारत समतल अंचल गुड़िक साधारणतः नदी और समुद्र उपकूलवर्ती अंचल देखा जाए।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଥିବାରୁ ଉର୍ବର ହେତୁ ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଜନବସତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଭାରତର ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମଳର ଗନ୍ତାଘର। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ମାଳଭୂମିକୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ତ ସେ ସମୟ ଲେଖିବା ଭାରତର ଶତକଡ଼ା 27% ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। ଏହି ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, କୋଇଲା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କୃଷି ଭୂମି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି କାହିଁକି? ନା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା 58% ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 55% ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଷ ଜମି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଆମର ମାନେ ବେଶୀ ଭାଗ ଆମର କୃଷିଭୂମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଷ ଜମି କମୁଛି କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଆମର ଭାଗ ମାନେ ହେଉଛି ଯୌଥ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଷ ଜମି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୃତୀୟ ହେଲା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧାନ ଓ ଗହମର ଉଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାର ଏକ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୈବାଂଶ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ଯେହେତୁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଧାନ, ଝୋଟ, ଆଖୁ, ଗହମ, କପା, ବାଜରା, ତୈଳବୀଜ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାନ ଓ ଗହମର ଉଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର 3ଟି ପାଠର ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ଓ କାରଣ ଦର୍ଶା। ଏହା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମୁନା ହିସାବରେ ନେଇଛୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯାହା ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଧାରା କିପରି ଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିପରି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯେତେ ମାନେ ଆମ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେ ଆମର ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ କିପରି ଲେଖିଛୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଏଇ 3 ପାଠରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 4ଗୋଟି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବେଶୀ ତାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଛି। IUCN ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ କନଜରଭେସନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1992 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଉପାୟରେ ଆମର ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଭରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଆମର ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ଭାର ଡ୍ୟାସ୍ ବହନ କରିଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ, ଭୂମି ଫଳ କରିଥାଏ।
ऑप्शन डी भूमि। भूमि वेरी गुड। ऑप्शन डी भूमि। समग्र जीव जगतर भार हमर भूमि ही वहन करता भू समूह आम पढ़ुचु। नेक्स्ट हिमालय पर्वतमालार 3000 मीटर रु 3500 मीटर मध्य डैश अरण्य देखा जाए। ज्वारिया अरण्य। ऑप्शन ए ज्वारिया अरण्य। नहीं ज्वार तुम ज्वार जो ज्वार पतांचल देखा समुद्र कूल देखा जाए ना। अरण्य देखा सरल वर्गीय अरण्य। वेरी गुड। हिमालय पर्वत सरल वर्गीय अरण्य। थैंक्स। वेरी गुड। 3500 मीटर मध्य आम सरल वर्ग अरण्य देखा जाए जो अरण्य मूर्तिका देखा पाई। नेक्स्ट नूतन पटु मूर्तिका को डैश कह जाए। नूतन पटु मूर्तिका कौन कह जाए? खादर। ऑप्शन बी। वेरी गुड। खादर बोली कह जाए। नेक्स्ट आरावली पर्वत पार्श्व देखा जाउथवा मरुस्थली मूर्तिकार नाम डैश। ऑप्शन बी लायस। ऑप्शन बी। भाई ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कौन लिखा है कौन को? सी। रोगोलिथ मूर्तिका बोली कह। वेरी गुड। आरावली पर्वत पार्श्व देखा जाउथवा मरुस्थली रोगोलिथ मूर्तिका बोली कह। वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ मोर आज प्रश्नावली आशा कर क्वेश्चन पढ़ले तुम लिखिपर जो लंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर से समय ही आम एमसीक्यू क्वेश्चन बाछिदेले आमको सुविधा हे जो आम दीर्घ उत्तर प्रश्न गुड़क पढ़ुचु से समय ही आम एमसीक्यू क्वेश्चन से बाछी ना आमको सुविधा होता है। नेक्स्ट पिला आज गृह कार्य लिखिनि आ कि एक्सट्रा आम दीर्घ उत्तर प्रश्न तुम घरे बसिक प्राक्ट कर लेखिकी निज भूगोल शिक्षक संशोधन करनब। प्रथम है धारणीय विकास कहले कौन बुझ। भारत में भूसंबल किपरि व्यवहृत होउछि। मूर्तिका गठन विभिन्न नियामक गुड़िक आलोचना कर। यहीपरि भाव में आम अन्य निजे दीर्घतर प्रश्न बाहर करके अभ्यास करें परीक्षा परीक्षा अल्प दिन रहा आम समस्त माने परीक्षा प्रिपेयर होबार अच्छी तो आम परीक्षा ध्यान देवा। धन्यवाद पिला माने।